اب دیکھیں سرکار کا ایک فرمان ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ سرکار کا کرم ہے، یہ حدیث مطلق ہے، مقید نہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ اگر ماں نمازن ہے تب اس قدموں میں جنت ہے، یہ نہیں فرمایا کہ اگر ماں نے حج کیا ہے تہجد گزار ہے تب جنت ہے۔ اگر تو خدا نہ خاصا کسی کی ماں بے عمل ہی کیوں نہ ہو، گناہ گار شاہکار بدعمال ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کی اولاد کی جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ اگر ایک گناہ گار شاہکار بدعمال ماں کا ادب کرے تعظیم کرے تو جنت ملتی ہے، تو جو تمام ایمان والوں کی ماں ہے۔ بلکہ آئیے نا جامعہ جن کی بارگاہ میں اللہ کے جبریل بھی سلام عرض کرتے ہیں، جامعہ ترمذی سیاستہ کی معتبر کتاب ہے، اس کی حدیث ہے، اور مشکات صفحہ 574 پر میں حدیث موجود ہے۔ کیا کریم فرماتے ہیں کہ جبریل امین آئے، راوی بھی سید الانبیاء ہے حدیث کے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جبریل امین آئے میری بارگاہ قدسیہ میں، اور سبز رنگ کے ریشم ٹکڑے کے اوپر سیدہ صدیقہ السلام علیہ کی تصویر بنی ہوئی تھی، اور آ کے عرض کیا حضور ہذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، یہ دنیا میں بھی آپ کی زوجہ ہے، آخرت میں بھی آپ کی زوجہ ہے۔ دنیا میں بھی آپ کی زوجہ ہے، آخرت میں بھی آپ کی زوجہ ہے۔ پھر اس امی جان کی شان کا کیا عالم ہوگا؟ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، the communicator of the unseen is nearer to the believers even more than their own selves۔ اے ایمان والو، میرا غیب کی خبریں دینے والا محبوب ایمان والوں کی جان کی بھی جان ہے، جان کی بھی جان ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، his wife are their mothers، اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ یہ آیت کا مبارکہ نازل کیوں ہوئی، اس کا شان نزول بھی بتا دوں۔ جب جنگ تبوک کا موقع ہے، سب سے زیادہ لشکر اس جنگ میں گیا ہے، سرکار کی صفت صلی اللہ علیہ وسلم میں 30,000 کا لشکر تھا۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ طائع و سمان نے اس جنگ میں 950 اونٹ دیے آسمان سے لدا ہوا، 50 گھوڑے بھی دیے ہیں، 10,000 دینار بھی دیے ہیں، کھرب پتی تھے، قریش کے شہزادے تھے، سین عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب سرکار نے کہا کہ او جہاد کے لیے نکلو، یہ پہلا موقع سرکار نے علال اعلان چندہ کی اپیل کی جنگ تبوک کے موقع پر 9 ہجری کو۔ سرکار نے جہاد کے لیے نکلے، کچھ لوگوں نے عرض کیا حضور اگر زیادت ہو تو ہم اپنے ماں باپ سے مشورہ نہ کر لیں؟ یہ روح البیان کی 7ویں صفحہ 138 ہے۔ انہوں نے عرض کیا میں شاورو آباؤنا و امہاتنا، حضور اگر اجازت دیں تو ہم مشورہ نہ کر لیں اپنے باپ سے اپنے ماں سے جہاد پہ جانے کے لیے؟ تو اللہ رحمہ جبریل عرض کیا یا رب فرمایا یہ آیت قصہ لے کے چلا جا، محبوب کی بارگاہ میں جا کے حاضر عرض کر یا رسول اللہ جب آپ حکم دیں گے تو پھر غلام کے لیے کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ ان کے والدین سے بڑھ کر، ان کے اپنی جان سے بڑھ کر محبوب آپ ان کے مالک ہیں۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، آپ ان سب سے بڑھ کر آپ ان کی جان کے مالک ہیں۔ تو اس موقع پہ یہ آیت قصہ نازل ہوئی۔ تو میں تو اکثر کہتا ہوں اگر سرکار عبد قرار، تو یہ سرکار عبد قرار کے غلاموں کی امی جان کی شان کو میں نے بیان کیا ہے، تو جو غلاموں کے آقا کی امی جان اس کی شان کا کیا کہنا؟ دیکھیں نا، جو سیدہ عائشہ صدیقہ کی امی جان ہے، ساس بھی جو ہے وہ ماں ہوتی ہے، جو تمام غلاموں کے آقا کی امی جان ہے ان کی شان کا کیا کہنا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام 6 سال ہوئے تشریف لائے، امی جان کے سرانے کھڑے ہیں، آپ کے سر مبارک کو دبا رہے ہیں، مقام ابوا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل کیا ہے خصائص الکبریٰ میں۔ علامہ جلال الدین سیوطی کوئی عام ہستی نہیں ہے، سرکار کے والدین کریمین طیبین طاہرین عابدین راکعین نیرین منورین کی ایمان کے اوپر انہوں نے اس وقت 6 کتابیں لکھی جب یہ فتنہ پھیل رہا تھا، اور اللہ کے محبوب اتنے خوش ہوئے کہ 75 مرتبہ حالت بیداری میں اپنا دیدار کرایا ان کو۔ اور پھر انہوں نے تفسیر جلالہ لکھی ہے، قرآن مقدس کی عربی تفسیر ہے، 32 لاکھ کے لگ بھگ حروف قرآن مقدس، جتنے حروف قرآن مقدس اتنے ہی حروف
तफसीर जलालैन के नाई का रफ्का माना ज्यादा है, इतना अल्लाह ताला ने सीने को भी खोल दिया। वो अपनी शोराफा किताब क़िसासुल कुबरा में लिखते हैं कि आप अम्मी जान का सर मुबारक दबा रहे हैं, सईदा कायनात मखदूमा कायनात पर्दा फरमाने वाली हैं और फरमा रही हैं कुल्लु हय्यिन मय्यितुन व अना मय्यितुन व ज़िक्री बाकी। मैं कि हर जिंदा ने हर मौत का जायका चखना है, फना होना है, मैं तो जा रही हूँ, व ज़िक्री बाकी, लेकिन मेरा जिक्र बाकी रहेगा। वलिदतु तत्तहरा, क्योंकि जिसको मैं जन्म दे रही हूँ वो तहारत सरापा तहारत है। वह तरक्ता हैरा, और दुनिया वालों मैं तुम्हारे लिए हैर छोड़ के जा रही हूँ, जो पूरी कायनात के लिए रहमत है उसको छोड़ के जा रही हूँ। उस अम्मी जान का शान का क्या आलम होगा। मैं तो यही कहता हूँ कि रुतबा बुलंद और बड़ी शान आमिना व तरक्तु हैरा, ऐ दुनिया वालों मैं तुहाडे वास्ते हैर छड़ के जा रही हूं, पूरी कायनात वास्ते रहमत छड़ के जा रही हूं। रुतबा बुलंद और बड़ी शान आमिना, रुतबा बुलंद और बड़ी शान आमिना, दुनिया की सारी माएं कुर्बान आमिना, दुनिया की सारी माएं कुर्बान आमिना। हमको रसूल पाक मिले तेरी गोद से, हमको रसूल पाक मिले तेरी गोद से, उम्मत पे ये है शफ़क़त एहसान आमना, उम्मत पे ये है शफ़क़त एहसान आमिना। रुतबा बुलंद और बड़ी, रुतबा बुलंद और बड़ी शान आमिना, दुनिया की सारी माएं कुर्बान आमिना, रुतबा बुलंद और बड़ी। मिशकात का सफ़ा 421 है। मेरे आका करीम फरमाते हैं अल्लाह ताला चाहे तो सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे सिवाय वालिदैन की नाफरमानी के, सिवाय वालिदैन की नाफरमानी के। माया के जन्नत की खुशबू, बड़ी लंबी हदीस है, 500 साल पहले आनी महसूस हो जाएगी, लेकिन वालिदैन का नाफरमान उससे महरूम रहेगा। अगर नमाजी है, हाजी है, गाजी है, लेकिन वालदा का नाफरमान है, वो कभी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। ये बात ज़हन में रख। तो जो एक गुनाहगार स्याकार बदअमाल माँ का बेअदब है वो जहन्नमी है, तो जो सारे ईमान वालों की माँ का गुस्ताख, उसका क्या बनेगा। सूरह नूर पढ़ के देखे ना, यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगा तो 4 महीने के बच्चे ने गवाही दी आपकी पाक दामनी की। सईदा मरियम पर इल्ज़ाम लगा तो ईसा रूहुल्लाह ने आपकी पाक दामनी की गवाही दी। और जब सईदा आयशा सिद्दीक़ा सलाम अलैहा के ऊपर इल्ज़ाम लगा, आप ही सिद्दीक़ा गवाही दे सकती हैं, सिद्दीक़ अकबर की बेटी हैं, वो गवाही दे सकते हैं, सईदा उम्मुल सलीम की ज़ौजा वो गवाही दे सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने आपकी पाक दामनी की गवाही खुद दी है। 18 आयतें बैय्यिनात सूरह नूर की भेजी हैं और दुनिया को बतला दिया कि जब तक अल्लाह का कुरान रहेगा सईदा आयशा सिद्दीक़ा तेरी अज़मत को सलाम रहेगा। तो भाई ये वक़्त हुआ चाहता है, फितराने के बारे में सुन लीजिए। सरकार का फरमान शान है कि जो बंदा अपने रोज़े का फितराना अदा ना करता साहिब निसाब होकर, उसका रोज़ा ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक़ रहता है, लटका रहता है, कबूल नहीं होता। ये दस फितराना है क्या? जो हम रोज़ा रख के ज़बान का भी रोज़ा होना चाहिए ज़बान ज़िक्र खुदा करे या ज़िक्र मुस्तफ़ा करे, तलावत कुरान मजीद करे या नात मुस्तफ़ा पढ़े, अल्लाह वालों के फ़दाइल को बयान करे, अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र करे। लेकिन जब हम रोज़ा रख के ज़बान से बेहुदा बातें करते हैं, नाज़ेबा कलिमात कहते हैं, तो ये जो फितराना है वो इसका इल्ज़ाम है। तो जो बंदा अपना फितराना अदा करता है, जो उसने लगो बातें की हैं, बेहुदा कलिमात कहे, अल्लाह ताला उस फितराने के सदके उन बातों को माफ़ फरमा देता है। तो ये
सेर 6 छटांक और 1 तोला बनता है आटा, या 4 सेर 4.5 सेर के लगभग खजूरें हों या किशमिश हो। क्योंकि साडा उस वक्त उधर गंदम महंगी थी, जौ सस्ते थे। जौ अगर देना है किसी ने तो 4.5 किलो देगा, गंदम का आटा देना है तो वो 2.5 किलो देगा। अगर किसी ने खजूरें देनी है तो वो भी 4.5 किलो देगा, किशमिश देनी है वो भी 4.5 किलो। तो ये फी का निसाब बनता है। 2.5 किलो जो आटा है वो तकरीबन 75 रुपये भी लगाएं तो 180-85, तो मेरा जो अपना अंदाजा है कि तकरीबन 200 रुपया फी का कम से कम। अगर खजूरों के हिसाब से निसाब जिसने देना वो भी दे सकता है, किशमिश के हिसाब से अपने हस्ब इस्तात, लेकिन कम से कम जो फितराना है वो 200 रुपया फी का है। जो बच्चा ईद की नमाज से पहले हो जाए उसका फितराना भी वालिदैन के ऊपर वाजिब है। और याद रखना फितराना जो है ये वाजिब है, सुन्नत भी नहीं है, वाजिब है। तो जो अगर मेहमान घर में है फितराना अदा करके ना, उसका फितराना भी साहिब खाना के ऊपर वाजिब है। तो ये सबसे ज़्यादा ज़कात फितराना सबसे ज़्यादा हकदार जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा दीन इस्लाम का काम करने वाली गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी है। 200 से ज़्यादा ममालिक में काम कर रही है। जो 100 सालों से तबलीगी जमात से काम ना हुआ, 1985 में शुरू करके उससे ज़्यादा काम करके दुनिया को दिखा दिया। पता चल गया कि सरकार के गुलामों की जमात है। और अमीर अहले सुन्नत मुजद्दिदुल आली, कितना कर्म है उन पर अल्लाह के महबूब का कि आज के 80-85 जो % जो मरीज है ना वो नौजवान तबका है। आज एक बच्चा नौजवान हो घर में, उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। तो कितना कर्म है सरकार इक़रार का अमीर अहले सुन्नत पर कि जिनके 80-85% जो मरीज है ना वो नौजवान है। और जाके देख लें, सर पे मामा होगा, चेहरे पे दाढ़ी शरीफ पूरी होगी। और मैं तो अक्सर किया करता हूं कि अगर अपने ईमान को बचाना है तो अकीदा आला हज़रत का ले लो, और अमल मेरे सईदी अलहाज मोहम्मद सादक और जिनका मतलब अमीर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद रियाज़ ग़ज़ाली, अमल इनका ले लो। खुदा की कसम दोनों जहानों में कामयाबी कामरानी तुम्हारे कसमों को बहुत से देगी। तो दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू हमें अपने वालिदैन की, सरकार के वालिदैन की अजमत, ताज़ीम और तौक़ीर करने वाला बनाए और उनके नक्शे कदम पे अमल पैरा होकर इस फ़ानी ज़िंदगी को गुजारने वाला बनाए। और सरकार के अज़वाज मुतहरात चूँकि अहले बैत में है, जो आया मुकसन है तत्हीर ये सईदा उम्मे सलमा सल्लल्लाहु अलैहि के हुजरे में नाज़िल हुई है। सरकार की तमाम अज़वाज मुतहरात अहले बैत में हैं, तमाम औलाद पाक अहले बैत में है। सरकार के दमाद अहले बैत में है, सुलेमान फारसी सरकार के अहले बैत में है, आले जाफर अहले बैत में, आले इबास अहले बैत में है। तो दुआ है अल्लाह सुब्हानहू सरकार के अहले बैत पाक अतहार से मुअद्दत करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन वमा अलैया इल्लल बलाग।